And don't ask the team for the recording of these sessions. These sessions are meant for live discussion only. Although we will be uploading it on YouTube for those who can't attend it live, but my priority is that if you can find out, I will not take much time of yours because I can understand that some of you have office commitments, some have college, some are occupied in other things. But see, if recording of video ही आपको देना था तो we would have recorded it only. So we are taking live sessions so that we can address your smallest concern as well, and we can make sure that each and every query is being resolved. Because what happens is that as of now you don't attend, and that every student has some doubts with respect to the guidelines. So almost every student keeps asking the same thing again and again. So just to avoid that, we make sure that whenever we are keeping a session, it's recommended that you take it live, and if for any particular reason you are not available, do inform the team about the same. सो अभी भी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. मैं हर बार हर सेशन में ये आपको समझाती हूँ दैट जस्ट ट्राई टू बी अवेलेबल 5 to 7 minutes बिफोर द सेशन ओनली सो दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग. We have so many students who are in office as of now and still they are on time. So for all those who are not on time, just try to be punctual going forward. There will be multiple talk sessions for India for April students depending on the updates that you are getting. So do make sure that you are available 5 to 10 minutes before the session only so that you're not missing on even the minutest update. Now, has everyone gone through April 2025 examination handbook that has been released by IFOA? I want to understand this thing first. Have you guys gone through that handbook which has been released by IFOA? अगर नहीं भी गो थ्रू किया है तो भी जस्ट फील फ्री टू कमेंट कि यस आई हैव नॉट येट गॉन थ्रू, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू डिसाइड कि हाँ कितना कितना आप लोगों को अभी जानने की जरूरत है. Okay, so I have received few responses. अगर आप लोग बोल रहे हो नॉट येट तो दिस इज वेरी रॉन्ग. Maximum students are saying no ma'am, not yet. Guys, this is something which has to be on priority. ठीक है, नॉट येट, नो अभी ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस एक्चुअली में हम ये सारी चीजें छोड़ के हम ये हैंडबुक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पर कुछ भी इशू ना हो. नाउ बी विद मी थ्रू आउट द सेशन एंड लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस दिस हैंडबुक. Post this, you should not have any doubts with respect to examination center guidelines. Because what happens, as I'm telling you, after the session, students keep on asking the team that whether this is allowed or this is allowed. So just to avoid that, as I am telling you, this is exam season and the entire team is already packed with lot of messages from students. So whenever you message on institute's number, just have some patience to let the team to reply to you, and we can make sure that we are replying to you as per the things that have been out by IFOA. So let me just now, this session is for examination handbook in-person invigilation. So please stick to in-person invigilation guidelines. As of now, the handbook for online session has not been updated. अगर आप IFOA की website check करोगे, तो you can see the two sections. One is the handbook for March 2020, which has been updated March 2025, and the other is the handbook as per the January 2025. So जो भी आपके पास ऑनलाइन सेशन से रिलेटेड, रिमोट इन्विजिलेशन से रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं, you need to make sure that you are checking your mail thoroughly for that. So Khushali, I hope this answers your doubt. Now, let me complete first and then put your doubts, because otherwise what will happen is this will break the rhythm of all the students who are live in the session. Let me first complete the entire handbook discussion. Uske baad I will be giving you time to discuss each and every query of yours. But in between, when I'm going through the handbook, please don't put anything on the chat section. It will break the rhythm of entire students. Now, this is the handbook that is available on IFOA website. I will ask the team also to share with you.
हमने अभी तक इसीलिए नहीं आउट किया था, सो दैट वंस वी कैन हैव अ सेशन तो वी विल बी फॉरवर्डिंग यू द हैंडबुक, अदरवाइज हैंडबुक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हो जाते. So when you are sitting for the exam, you need to make sure that you are reading the examination handbook, the examination rules very carefully. कुछ भी ना समझ में आए, कहीं पर भी आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ भी करना है, दिस ईमेल आईडी मेंबर सर्विसेज एंड एग्जाम एक्चुअरीज वाली अभी आईडी मैं आपको बताऊंगी, दैट इज अवेलेबल. Now, 2 weeks before your exam, what you are supposed to do is you just have to check कि क्या सारी मेल्स करेक्टली आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है, अकाउंट आपका प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं हुआ है, आपने इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करा है या नहीं करा है. आपको अपने एग्जाम का एंड टाइम स्टार्ट टाइम पता होना बहुत जरूरी है. एंड जस्ट चेक कि आप इसको इंडियन टाइम अज्यूम नहीं कर रहे हो या फिर अपना डोमेस्टिक टाइम नहीं अज्यूम कर रहे हो. दिस इज एज पर द यूके टाइमिंग्स. So just adjust everything as per the timings and your country in which you are in. Now, let me just quickly go through the details which are required from your side. एक तो सबसे पहले you have to make sure that your contact details are correctly updated in your My Account section, because some students keep on asking us that they are not getting mails from IFA. It's maybe that you have updated wrong email ID to your portal or an email ID which is currently not in use. So just make sure that your contact details are correct and up to date. They will not take the responsibility if your details are incorrect. You yourself have to take the responsibility of correct details. So this is first thing. Now next thing that we have to do is कि ये सब चेक कर लो कि इन ईमेल आईडी से जो भी हमारे पास मेल्स आ रही है वो स्पैम में ना जा रही हो. Because sometimes we don't check our junk folder or we don't check our spam folder, but do make sure to check it on regular basis, because IFOA के सारे अपडेट्स आपको इन्हीं ईमेल आईडी से जाएंगे. तो आपको कुछ मेंशन करना है या कुछ भी कोई भी इशू है तो अपना स्पैम या जंक फोल्डर डू मेक श्योर टू चेक इट ऑन रेगुलर बेसिस. नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मेरे से लास्ट सेशन में भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि व्हाट आर वी अलाउड टू कैरी एट द एग्जामिनेशन सेंटर. टू सी दिस, you must bring one of the following permitted photographic identification to be produced at the exam center, and the name on your document must match the examination registration details for you, and photograph must resemble you. बहुत इशू आता है अगर आपके फोटो आईडी प्रूफ में नाम कुछ और है और आपने जो आईएफओ में नेम रखा है वो कुछ और है, उसमें इशू आएगा. अगर किसी का ऐसा कुछ है तो अभी आप मेल कर दो कि मेरे आईडी प्रूफ में ये नेम है और मेरा जो पोर्टल पे नेम है वो इस तरीके से अपडेटेड है, सो दैट दे कैन अपडेट एवरीथिंग इन द पोर्टल एंड यू आर नॉट फेसिंग एनी इश्यूज एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम. आपको ओरिजिनल वैलिड इन डेट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं. और वो कौन से आप आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हो? ड्राइविंग लाइसेंस इज एक्सेप्टेड, पासपोर्ट इज एक्सेप्टेड, एनी नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड इज एक्सेप्टेड, एनी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन कार्ड इज एक्सेप्टेड. So driving license, passport, Aadhaar card will work if you are carrying it. Originals need to be carried. Next, देखो, you must only bring permitted items into the examination room. अब कौन सी permitted items है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लेके जा सकते हैं. Some of you were confused कि हमें लैपटॉप मिलेगा या पीसी मिलेगा लास्ट सेशन में, कि टाइपिंग ज्यादा बेटर पीसी में होती है. उन्होंने साफ साफ इसका मेंशन कर दिया है, विंडोज पीसी और लैपटॉप कैन बी प्रोवाइडेड टू यू, जिसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस आपका अटैच रहेगा और QWERTY कीबोर्ड अटैच रहेगा. तो you can accordingly make sure that you are practicing in QWERTY keyboard and external keyboard और mouse की आपके पास assistance है. तो even if it is a laptop, you have access to keyboard and mouse. So I think this has resolved many queries of students who were just confused with respect to usage of laptop. They have allowed, but आपको खुद से कीबोर्ड या माउस कैरी नहीं करना. लास्ट सेशन में भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हम क्या कीबोर्ड माउस कैरी कर सकते हैं. दे विल बी प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग. नेक्स्ट इज सिंगल 17 इंचेस लैपटॉप स्क्रीन और एक्सटर्नल मॉनिटर, सिंगल स्क्रीन. यू आर नॉट अलाउड टू अटैच इट टू मल्टीपल स्क्रीन्स. गूगल क्रोम का ब्राउजर का एक्सेस आपके पास रहेगा. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस जिसमें एक्सेल और वर्ड डाउनलोडेड रहेगा. आर वर्जन भी डाउनलोडेड रहेगा. आर स्टूडियो 2024 है और जिप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड रहेगा.
तो सम ऑफ यू वर आस्किंग कि आर सॉफ्टवेयर पे रहेगा या आर उनके सिस्टम पे रहेगा या नहीं रहेगा. आर विल बी देयर ऑन देयर सिस्टम एज पर दिस हैंडबुक. आपके पास अपने एग्जामिनेशन पेपर फॉर्मेट का आइडिया है कि अपलोड फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि सबके लिए वर्ड फाइल्स है. आप चाहे कोर प्रिंसिपल एग्जाम दे रहे हो, कोर प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हो, एसपी हो, एसए हो, सबका वर्ड है एक्सेप्ट फॉर CP2 जिसमें आपको एक्सेल फाइल अटैच करनी है. एंड पेपर का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो मेंशन. नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंथ इज 3 hours 20 minutes except if it is a practical exam. Now this is important, this section, see this. You must log in and download the examination paper within 30 minutes of your start time. After this time you will be marked as absent and your attempt will be marked as a fail. और अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना. डोंट रिलाई सोनली ऑन एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर कि हाँ हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया इसलिए हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया. आई विल एडवाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, गॉड फॉरबिड अगर कुछ टाइम पर कोई इशू आता है, डू मेक श्योर कि आपके पास फोन में सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है, सिस्टम में स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है, प्रिंट स्क्रीन करके आपके पास हर चीज का प्रूफ अवेलेबल है. डोंट रिलाई सोनली ऑन योर एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर. एंड नेक्स्ट, अब आप लोग पूछते हो कि ऑटो सेव रहेगा या नहीं रहेगा. ऑटो सेव का ऑप्शन है वहां पर, ऑटो सेव ऑन है, बट स्टिल जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन सेफ साइड, you are supposed to save it on regular basis. And it's mentioned that you need to save your file either on desktop or my documents. जहाँ मर्जी आप सेव कर लेना. ठीक है. एंड ARN needs to be attached to your answer script file name. I hope all those who are basically giving the exam for the first time, शायद उनको ना पता हो naming convention. Naming convention for any exam is name of the exam. For example, if you are appearing SA3, तो SA3 April 2025 एंड साथ में आपको अपना ARN नंबर मेंशन करना है. आपका नेम कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं रहना चाहिए. So many students keep on asking the same thing again and again. What's the naming convention of the file? The naming convention of the file is clearly mentioned in front of you. Next देखो, you must not save or change the file name after the examination time ends, including that 30-minute upload window. आप नहीं चेंज करोगे. आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने इन्विजिलेटर को बोल दिया था कि मैंने बस गलती से सेव हो गई. यहाँ वो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर को रेफर नहीं करेंगे. सब कुछ अभी भी सेम ही है, आपको अपलोड और डाउनलोड ही करना है, आप कोई प्रिंट नहीं दे रहे हो वहां पर. सो एवरीथिंग इज बेसिकली योर सॉफ्टवेयर, योर पोर्टल. You are supposed to download paper from the portal itself. You are supposed to upload it on the portal and make sure that you're not making any changes in that 30-minute upload window. Next is you must not include any information that could identify you. आपका नाम हेडर में, फुटर में, कहीं पर कहीं भी पेपर के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए. So all those who are giving it for the first time, just make sure that you are reading it very carefully. कहीं पर भी आपका नाम नहीं होना चाहिए. Guys, please have some patience. मैंने पहले ही आपको बोला है कि let me just complete this section. I am available to discuss each and every doubt of yours. Still, I am receiving many messages, direct messages, chat messages with respect to doubts. Let me just first complete. It breaks my momentum as well. Let me first complete, then you can ask your doubts. एंड सिर्फ डॉक फाइल या XLS फाइल ही एक्सेप्ट होगी आपकी अपलोडिंग के टाइम पर. और ये सारी चीजें ध्यान रखना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं. आपको लग रहा है ये बहुत इजी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसी वजह से वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट बीइंग एबल टू अपलोड देयर आई मीन एग्जामिनेशन आंसर शीट. You must not password protect your file as it cannot be marked. You must not include links within your answer file. कोई भी लिंक आपकी फाइल में नहीं रहेगा. कोई भी मैसेज मार्कर के लिए नहीं रहना चाहिए. जय माता दी, ऑल द बेस्ट, चेक माई एग्जाम, ये सब जो आप लिखते हो, ये सब कुछ आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए. You must type all your answers. Everything has to be typed. Next important update. No restriction with respect to the usage of calculator. So this is an important update. No restriction on the usage of calculator. Any calculator is allowed in exam.
You can use Excel for calculation. So many students ask us, can we use Excel? Yes, you can use Excel. अब एक्सेल के यूजेज की ना कुछ लिमिटेशंस है, बस उसको आपने ध्यान में रखना है. डेटा विद इन एक्सेल शुड बी कॉपीड एंड पेस्टेड डायरेक्टली इनटू योर आंसर फाइल. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. Screenshots will be accepted for marking, but you need to make sure that all your workings are. मैंने हर बार आपको ये समझाया, आप एक्सेल यूज कर सकते हो, एक्सेल यूज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको ये मेक श्योर करना है कि एक्सेल के अंदर आपने कोई अगर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है तो वो वर्किंग आपकी वर्ड फाइल में डिस्प्ले होनी चाहिए. बिकॉज जब आप फॉर्मूला कॉपी करोगे तो वो फॉर्मूला कॉपी नहीं हो रहा. हमें बस ये मेक श्योर करना है कि वी आर कॉपिंग द फॉर्मूला एज वेल इन आवर वर्ड फाइल. हमें वर्किंग दिखानी है वर्ड फाइल के अंदर. आप फॉर एग्जाम्पल CB1 स्टूडेंट्स, दे कैन यूज एक्सेल फॉर बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट. ठीक है, जो भी कॉपी करो, लेकिन जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, आपने फॉर एग्जांपल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करा है, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वहां पे जाके मेंशन कर दो कि विच फॉर्मूला आई हैव यूज्ड. तो एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड दैट यू आर एक्सप्लेनिंग योर वर्किंग. Data copied from Excel must not be linked to another source file. Now again this is very important. कोई VLOOKUP लगाया है, कोई HLOOKUP लगाया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो वो एक्सटर्नल सोर्स फाइल का रेफरेंस लेगा और वर्ड फाइल पर आपको एरर थ्रो करेगा, तो ये मत करना. डू नॉट कॉपी और इंसर्ट एन एक्सेल शीट इनटू वर्ड. आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपको अटैचमेंट की तरह एक्सेल को इंसर्ट नहीं करना. Next is, you can upload your completed answer file at any time. At the end of examination time, just save and close your answer file. You must not open your file after the time has ended. ठीक है. टू अपलोड योर आंसर फाइल, सिलेक्ट द एग्जाम पेपर बटन. आपके एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म पे, एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबके लिए एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है. वहीं पर जाके बस आपको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, वहीं से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे. 30 मिनट्स का टाइम है आपको जो अपलोडिंग के लिए आपको दिया. अब अपलोडिंग के टाइम पर कुछ भी इशू हो रहा है, आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो, स्क्रीनशॉट्स लो, मेल करो IFOA को. बट अगर आप ये सपोज करोगे कि सिर्फ इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अपने आप कर देगा, वो नहीं करेगा. इन्विजिलेटर कुछ भी नहीं है. कोई भी इशू हो रहा है, यू हैव टू मेक श्योर आपके पास उसके प्रूफ्स अवेलेबल है. आप लोगों ने सफिशिएंट टाइम स्पेंड किया है इतनी प्रिपरेशन करके, तो डोंट जस्ट मेक श्योर दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल टेक्निकल इशू योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग इनटू वेन. So timestamp of your answer file will be validated by the examination system. This includes the time and date the files were last modified. And maximum file size is 100 MB. ठीक है. Now, if examination platform fails during examination, IFOA assessment delivery team will do their best to immediately put alternative arrangements in place where possible. और अगर कुछ नहीं हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. बट वी एडवाइज यू टू मेक श्योर कि आपकी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए. उनकी वजह से अगर कुछ होगा तो दे विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट. नेक्स्ट देखो, आप लोगों का अनदर कॉमन डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वहां पर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया तो क्या करेंगे. System issues could relate to internet connection or electricity failing. If you experience issues with your system, keep a log of the issues and times you have been affected. You need to take screenshots as evidence for errors or issues which have occurred. तो ये बहुत बार होता है सेंटर पे जाके, जैसे इंडिया के एग्जाम जब पहले सेंटर बेस्ड थे तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू इन्फॉर्म अस कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, 10 मिनट लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपके पास इस चीज का प्रूफ अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको वो जो कंपनसेटिंग फैक्टर चाहिए आप IFOA को इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर सको. ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स विल बी लिसन्ड प्रोवाइडेड दैट यू हैव एविडेंस फॉर दैट. अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूले और सिंबल्स हैं जो उन्होंने बताए हैं CM1 CM2 CS1 CS2 के लिए. आई होप दिस नोटेशन शीट इज क्लियर टू एवरीवन. ये सेम नोटेशन शीट है जो हम लोग यूज करते हैं. इसके अलावा भी कुछ भी और आप यूज करते हो दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. इक्वेशन एडिटर वगैरह भी इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. दिस इज जस्ट स्टैंडर्ड शीट विच इज अवेलेबल. At the end, they are not focusing basically on your notations. They are focusing on what you're writing, how you're writing, and ultimately your final answer.
Next is, if you forget your password, go to the login screen, enter your ARN, click on forgotten password और वो आपको reset password का ऑप्शन दे देगा. अगर आप पहली बार अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आएगा एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म पे, बेसिकली सेटअप माय अकाउंट, उस पर क्लिक किया, पासवर्ड क्रिएट किया, उसके बाद डिटेल्स वगैरह सारी डाली, वो ऐसा आ जाएगा, थैंक यू, योर अकाउंट इज नाउ एक्टिव. ठीक है, और यहीं पर ही आपको अपना एग्जामिनेशन, ये से वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स, गार्डियन ब्राउजर वगैरह कुछ नहीं है. आप यहाँ पर नॉर्मल जैसे हम अपने एग्जाम में लॉग इन करते हैं, जैसे पिछली बार तक लॉग इन कर रहे थे, सेम वही तरीका है. यहीं से आपने व्यू एग्जाम करना है, यहीं पर ही आपका एग्जाम पेपर ऐसे मटेरियल होगा, एग्जाम मटेरियल अवेलेबल होएगा, यहीं पे ही जाकर आपने पेपर को डाउनलोड करना है, ब्राउज करके सिलेक्ट फाइल करके पेपर को अपलोड करना है. गलत फाइल सिलेक्ट हो जाती है, उसको रिमूव कर दो, नई फाइल को सिलेक्ट कर लो. तो अपलोड के बाद फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगी आपके पास. So once your file has been successfully uploaded, the exam platform will show an on-screen confirmation receipt detailing the exam, your candidate details, upload details, and the file name. In addition to this, an email will be sent to the email address which you have entered on the exam platform. तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा कि yes, it has been uploaded. तो ये स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी once your exam answer sheet has been uploaded. Thank you for uploading your submission. This has been accepted and submitted for grading. So this is what examination handbook is all about. कि यहाँ पर they have just listed out कि okay, you are supposed to carry all these things. Just make sure that you are reaching to the examination center 1 hour before, 30 minutes before. आप log in करके अपना सब कुछ कर लो ताकि absent ना मार्क हो. कुछ भी issue आ रहा है, screenshots वगैरह लेकर चलो ताकि कुछ भी issue आपका है तो you can just show the evidence to IFO. अब आप अपने डाउट्स डालो इन चैट सेक्शन सो दैट वी कैन क्विकली टेक देम. So we will ask the team also to share the all this handbook with you. Just make sure that you have gone through this handbook once. एक बार quick read दे देना handbook को. सेविंग कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, दिस शुड बी क्लियर. क्या क्या वहां पे सेटअप आपके पास होगा, तो जस्ट मेक श्योर यू नो ऑल दीज थिंग्स. ईमेल कौन से आपको एड्रेस से आ रही है, स्पैम में जा रही है, जंक में जा रही है, नहीं जा रही है, ये सब चीजें आप पहले ही चेक करके रखो. ये भी देखो, ये भी लिखा हुआ है, यू कैन ब्रिंग वन शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म एंड लिस्टिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर सपोर्ट पर्पस. अगर आपको लग रहा है आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो, ईमेल एड्रेस भूल जाते हो, आप वो शीट कैरी कर सकते हो जिसमें ये सारी डिटेल्स एंटर्ड है. So guys, your questions in the chat section. So Dhruv is asking, गार्डियन ब्राउजर पे कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर इन द गार्डियन ब्राउजर. आपको अपने अकाउंट लॉग इन करना है, अकाउंट लॉग इन करके आपका एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म वहां पर विजिबल रहेगा, वहां पे जाके बस आपको पेपर डाउनलोड, पेपर अपलोड, कुछ भी नहीं है आप गार्डियन ब्राउजर. So, ma'am, I took, Keshav is saying, I took IFO session held yesterday in that they told only original orange book will be allowed, no Xerox will be allowed. So, yes, as per the latest update, जो आपको टेबल बुकलेट है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, Xerox नहीं होगा. ठीक है, जिनके जो आई थिंक यू कैन ऑर्डर टेबल बुकलेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया. जिसके पास भी टेबल बुकलेट नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आपकी टेबल बुकलेट पे ना कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए. बेसिकली जेरोक्स में इशू क्या होता है कि हम लोग उसमें स्क्रिबल बट बहुत ज्यादा यूज करते हैं. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि इट हैज टू बी फ्रेश एंड नथिंग शुड बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर बुक.
So Ravi Shankar is asking, what about remote invigilation system? As I told you, it remains same. उसमें कोई भी changes नहीं है. जो भी आपको remote invigilation की mail आ रही है, just check on that mail and just do the required things that they have asked you to do. As per the latest update, there have been no changes in remote invigilation. Next question is by Parvati. Do we have to take our laptops? No, Parvati, they will be providing you the laptops. You are not supposed to take anything. So Mehak is asking how we will be able to log in at the day of exam. Like we'll be logging to the exam platform with our ARN and password. How will we take the screenshots or send or receive mails? आपको Google Chrome का access इसीलिए दिया गया है ताकि आप वहां पर अपना ब्राउजर ओपन करके अपना पोर्टल लॉग इन करोगे और वहां पर आपके पास डिटेल्स आएंगी. Hard copy of table booklet is allowed. So if system itself gets off, how we will take the screenshot? You can ask your external invigilator to take the screenshot. So again, same question. We are not supposed to carry our laptops at the center. It is, they will be providing us PC or laptop. You can carry your hard copy table booklet if it is completely clean. एग्जाम आर रवि एग्जाम्स आर कंफर्म्ड. अगर आपको लोकेशन अलॉट हुआ है तो उस लोकेशन पे आपका एग्जाम है. अगर आपको लोकेशन अलॉट नहीं हुआ तो आपके पास मेल आई होगी रिमोट इन्विजिलेशन की. तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपको लोकेशन इशू हुई है या नहीं. तो इसके लिए भी हमने लास्ट वीक ही एक सेशन लिया था. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स. जो भी हम आप लोगों को नोटिफिकेशंस भेजते हैं, सेशंस लेते हैं, आप लोग बिल्कुल भी वॉच नहीं करते हो. इट इज फॉर यू गाइज ओनली. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड विद ऑल द recent changes that are going on. There will be no PDF of table provided in the laptops. कहीं पर भी सेटअप में ये मेंशन नहीं है कि लैपटॉप पे PDF tables का मिलेगा. तो we cannot make sure कि whether this will be there or not. So don't rely on this. जो भी available है वो उन्होंने मेंशन कर दिया. So Tanvilin, as of now, you can make sure that if your Xerox table booklet is clean, you can just carry that. अभी थोड़ा और अपडेट्स आ जाए उसके बाद वी कैन जस्ट बी मोर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू कि ओरिजिनली ऑर्डर करनी होगी. बिकॉज अभी तक जो हम सेंटर्स पे अलाउ होता था वो वहां पर हमें अपनी टेबल बुकलेट प्रोवाइड करते थे. हम लोग कभी भी अपनी बुकलेट कैरी नहीं करते थे, ठीक है, IFO के सेंटर्स में. बट इंडिया के सेंटर्स में भी वही लोग टेबल बुकलेट प्रोवाइड करते थे. अगर अभी ऐसा कुछ चेंज है कि वो लोग टेबल बुकलेट नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो आपकी जो टेबल बुकलेट है बस ये मेक श्योर करना कि वो क्लीन होनी चाहिए. अगर ऐसा कुछ और भी इस पे वी आर स्टिल चेकिंग. अगर ऐसा है कि सिर्फ ओरिजिनल से अलाउड है तो यू माइट हैव टू ऑर्डर. तो फॉर दिस वी स्टिल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम एंड देन वी विल जस्ट फाइंड आउट अ फाइनल कंक्लूजन. So Janvi is asking, there won't be any admit card for sitting arrangement, only the IT proof. आपके एग्जाम आपके प्लेटफॉर्म पे ही बस डिटेल्स आ रही होंगी कि आपने ये एग्जाम फिल किया है. जैसे पिछली बार तक आ रही थी, बस उसका आप एक प्रिंट लेकर और साथ में ID प्रूफ लेकर यू आर जस्ट अलाउड टू गो. ऐसा अलग से कोई जैसे एग्जामिनेशन हॉल टिकट इंडिया में आती थी, बट अभी यूके में जब से ऑनलाइन हुआ तब से कोई एग्जामिनेशन हॉल टिकट नहीं आती. So guys, more questions? Any other questions? Harshita is asking, we just need to take with us an ID proof, pen, hard copy of table, single sheet of paper and bottle, nothing else, right? Yes. You're supposed to carry all these things. आप एक्स्ट्रा शीट्स दो तीन और रखना चाहते हो रख सकते हो, बट चाहिए होगा तो वहां पे प्रोवाइड हो जाती है. तो इसके लिए इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है. कैलकुलेटर डेफिनेटली इज अलाउड. Next, Monish is asking, can we use online file compressor?
मोनिश आपने क्यों एग्जाम के टाइम पर ऑनलाइन में फाइल कंप्रेसर करना है? मतलब आपकी फाइल क्यों 100 MB को एक्सीड करेगी? आप एक नॉर्मल वर्ड फाइल में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको वहां पर अपलोड करना है। सो व्हाई आर यू इंडल्जिंग इन ऑनलाइन फाइल कंप्रेसर? वो आपका उस टाइम पे कोई वर्ड फाइल को करप्ट कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप क्या करोगे? सो व्हाई डू यू वांट टू इंक्रीज द साइज? So set up, Pammi is asking, set up an account at the time of exam means to just log into my account on IFA portal. Yes, you're logging in, जो भी initial login instructions है आपने वो देख लिया है, और जैसे ही बस एग्जाम पेपर अवेलेबल होगा आपने उसको डाउनलोड कर लिया। Downloading and uploading process, yes, Sanika, is completely same as last year exams. As per this handbook, completely same. वहीं से ही हम अपलोड कर रहे हैं, वहीं से ही हम डाउनलोड कर रहे हैं। बस क्या है कि हम घर पे बैठे के बजाय सेंटर पे जाकर एग्जाम दे रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। 3 hours 20 minutes में मान्या is asking one question, is 30 minutes uploading time included? Very bad मान्या, इस पॉइंट पर आकर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि 3 hours 20 minutes में 30 minutes का अपलोडिंग टाइम इंक्लूडेड है? गाइस हेल्प मान्या, in 3 hours 20 minutes as per you is 30 minutes uploading time included? Quickly, anyone who can answer this question, you can unmute your mic and speak. Yes, so it is not included. 30 minutes अपलोडिंग टाइम है, आपको सेपरेट दिया गया है मान्या। 3 hours 20 minutes इज योर टाइम टू राइट एग्जाम। उसके बाद वो आपको 30 minutes का एक्स्ट्रा टाइम देता है कि 3 hours 20 minutes तक आप सिर्फ लिख सकते हो। उसके बाद आपका टाइम पेपर का चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार वो आपको मैंने डिक्टेट किया है कि आपका पेपर का टाइम नहीं चेंज होना चाहिए। जो भी आपने कंट्रोल एस करना है वो आपका टाइम 3 hours 20 minutes के अंदर ही आना चाहिए। एक बार कंट्रोल एस कर दिया उसके बाद आपके पास आधे घंटे का टाइम है अपलोड करने का। लेकिन अपलोड में आपको पता है आधा घंटा नहीं लगता, जस्ट मतलब 5 seconds टास्क। वहां पर जाके बस आपने अपलोड किया, और अपलोडिंग के टाइम पर ये मत करना कि फिर से कंट्रोल एस कर रहे, वहां पर इशू आता है। सो मॉक्स आर रवि जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर यू टू गाइड कि हाँ क्या करना है। मॉक में कम टाइम मिल रहा है, कम अपलोडिंग का टाइम मिल रहा है, सब कुछ जो मिल रहा है दैट इज जस्ट फॉर असेसमेंट ओनली। मॉक्स पे रिलाई मत करो, आपके सामने रियल पिक्चर है। Mock is just for making you comfortable with your platform. Any other question? I hope this answers all your doubts with respect to your recent updates that we have received from IFOA. जैसे जैसे और updates आएंगे, we will make sure that we are updating you with those changes as well. But as of now, सबके पास same information ही हमारे पास available है। ठीक है, तो I hope this answers everyone's doubts. अब just make sure that you have gone through this handbook clearly. कुछ भी डाउट्स आते हैं हैंडबुक के तो अब उसमें एक छोटी छोटी चीजें पकड़ के मत बैठना। इस टाइम पर कंसंट्रेशन आपकी सिर्फ एक ही चीज पे होनी चाहिए कि मेरा प्लेटफॉर्म सेम है, मुझे सेंटर में जाकर बस अपलोड डाउनलोड करना है और नॉर्मल 3 hours 20 minutes का पेपर देना है। सेव एस जो भी करना है वो 3 hours 20 minutes के अंदर अंदर करना है। उसके बाद मुझे अपनी आंसर शीट को खोलना भी नहीं है। कुछ भी इशू आएगा तो वहां पर जो इन्विजिलेटर्स होंगे मैं उनकी हेल्प लूंगी, उनसे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। हमारे पास हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। कैलकुलेटर कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी लेके जा सकते हैं। बाकी जो भी परमिटेड आइटम्स हैं आई एम अलाउड टू टेक। इसके अलावा मुझे और किसी चीज से कंसर्न नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इज आज 19 मार्च है, एक अप्रैल से मेरे एग्जाम में। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ माय रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इन सब चीजों को भूल जाओ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो। ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो भी प्रिपरेशन करी है आपने, जितनी भी प्रिपरेशन करी है, जस्ट ट्राई टू गिव योर 100% टू द रिमेनिंग टाइम एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट। अब मत कंफ्यूज हो, रिमोट इन्विजिलेशन है, लोकेशन कहाँ है, सेंटर क्या है, जो भी है आप लोगों के सामने है। अब जो भी अपडेट्स है इसको हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड वी जस्ट हैव टू गो टू द सेंटर एंड गिव आवर एग्जाम। बाकी छोटी मोटी चीजें कुछ इशू रहेगा तो उसके लिए वहां पर जो सपोर्ट टीम अवेलेबल है, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स नाउ।